Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. We are studying chapter number 4, Measures of Dispersion. Today we are going to discuss variance, lecture number 25. The topic is variance. It is defined as the arithmetic mean of squares of deviations of values from their mean. Population variance. When variance is calculated from population, it is called population variance. It is denoted by sigma square. Sigma square is equal to summation x minus mu whole square divided by n. N is capital N for number of values या population के लिए यूज होता है, ठीक है। और म्यू जो है ये मीन है population का, and sigma square is the variance of population. Now sample variance. आपको पता है कि population और sample के बारे में आपने पढ़ा है कि population आपके पास क्या होता है, aggregate होता है, list of all the things, all the objects, और sample क्या होता है, it is the part of that population, ठीक है, small part of that population. सैम्पल वेरिएंस, तो इसी तरह से पॉपुलेशन के लिए भी आप जो हैं ये मीन है, वेरिएंस है, ये सब आप फाइंड करते हैं, जितनी भी एवरेजेस हैं, ठीक है, डिस्पर्शन है, ये सारा फाउंड होता है और सैम्पल के लिए भी फाउंड होता है, ठीक है। तो सैम्पल वेरिएंस क्या होगा, लेट x1 x2 अप टू स्वान xn बी n ऑब्जर्वेशंस। अब सैंपल के लिए क्या होगा, स्मॉल n यूज होगा, ठीक है, n ऑब्जर्वेशंस, देन सैंपल वेरिएंस डिनोटेड बाय s स्क्वायर is given as s square is equal to summation x minus x bar whole square divided by n. अब इसमें क्या होगा, n जो है वो स्मॉल होगा क्योंकि सैंपल का है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस या नंबर ऑफ वैल्यूज, और मीन ऑफ सैंपल किसके इक्वल होता है, x बार के, और s स्क्वायर इज द सैंपल वेरिएंस. Formulas for variance. First, for ungrouped data. Direct method. First method is direct method for ungrouped data. It is variance is denoted by s square is equal to summation x minus x bar whole square divided by n. इसको n minus 1 पे भी हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, जब अनबाइस्ड वेरिएंस हमने लेना होता है, ये आगे हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एस स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, और इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं समेशन एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन होल स्क्वायर, और इसी चीज़ को समेशन एक्स ओवर एन जो है वो एक्स बार के इक्वल होता है, तो इसको वाई बार स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो ये इक्वल हो जाएगा समेशन एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस एक्स बार स्क्वायर. नाउ शॉर्टकट मेथड. सेकेंड मेथड इज शॉर्टकट मेथड. उसमें आपके पास जो वेरिएंस है वो किसके इक्वल होगा, एस स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन डी स्क्वायर बाय एन माइनस समेशन डी ओवर एन होल स्क्वायर, वेयर डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए. The third method is step deviation or coding method. S square is equal to h square into summation u square by n minus summation u over n whole square, ठीक है, where u is equal to x minus a over h. Formulas of variance for group data. इसमें भी फर्स्ट मेथड है डायरेक्ट मेथड, in which s square is equal to, in this method, direct method, s square is the variance, it is equal to summation f into x minus x bar whole square divided by summation f. जैसा कि आपको पता है कि ग्रुप डाटा में आपके पास फ्रीक्वेंसी भी होती है, तो इसके साथ क्या होगा, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई हो जाएगी, और इट इज़ फर्दर रिटर्न एज समेशन एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन एफ माइनस समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ होल स्क्वायर.
and it is further equal to summation fx square by summation f, as we know that summation fx over summation f is equal to x bar, तो इसको हम लिख सकते हैं x bar square. The second method is indirect or shortcut method. S square is equal to summation ft square divided by summation f minus summation ft divided by summation f whole square. And coding or step deviation method, S square is equal to h square into summation fu square divided by summation f minus summation fu divided by summation f whole square, where u is equal to x minus a over h, and x minus a is equal to d, so it is equal to d over h. Now, properties of variance. The first property is the variance of a constant is 0. That is, variance of A is equal to 0. A is any constant, and variance of A is equal to 0. The second property is the variance is independent of origin. That is, if we add or subtract any constant from all the observations, variance remains unchanged, where variance of x plus minus a is equal to variance of x plus minus variance of a. It is further equal to variance of x plus minus 0, where variance of constant is equal to 0, so it is equal to variance of x. The third property is the variance is affected by change of scale. That is, when all the values are multiplied or divided by a constant, the variance of the values is multiplied or divided by the square of that constant. That is, variance of ax is equal to a square into variance of x, and variance of x over a is equal to 1 over a square into variance of x. के वेरिएंस जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन है, कि अगर वेरिएबल के अंदर हम कोई वैल्यू जो है, कोई कांस्टेंट जो है वेरिएबल में ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो वो अनचेंज होगा, इट रिमेन्स अनचेंज, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो वेरिएंस ऑफ एक्स के ही इक्वल होगा. लेकिन वेरिएंस जो है वो इफ़ेक्ट होता है चेंज ऑफ स्केल से, और चेंज ऑफ स्केल क्या होता है कि वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो या वेरिएबल उस कांस्टेंट पे डिवाइड होगा, तो वो उसके स्क्वायर के मल्टीप्लिकेशन या स्क्वायर के डिवीजन के इक्वल हो जाएगा. जैसा कि हमने नीचे बताया है कि वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ एक्स, के ए इज एनी कांस्टेंट, इट इज मल्टीप्लाइड बाय द वेरिएबल एक्स, और जब उस पे वेरिएंस हमने अप्लाई किया तो उसका स्क्वायर जो है वो वेरिएंस ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है. इसी तरह से वेरिएंस ऑफ एक्स ओवर ए जो है, यानी x जो है वेरिएबल ए कांस्टेंट है, कांस्टेंट पे डिवाइड हो रहा है, तो उसका वेरिएंस जो है 1 ओवर ए स्क्वायर वो डिवाइड हो रहा है ए स्क्वायर जो है वेरिएंस ऑफ x पे. ठीक है. द फोर्थ प्रॉपर्टी इज द वेरिएंस इज नॉन नेगेटिव फंक्शन. ठीक है, वेयर वेरिएंस इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 हो सकता है या 0 से ग्रेटर होगा, माइनस में इसकी वैल्यू नहीं हो सकती. The fifth property is the combined variance of a group consisting of subgroups of n1, n2 up to so on nk values having means x1 bar, x2 bar up to so on xn bar, and respective variances s1 square, s2 square up to so on sn square is given by s square is equal to summation ni si square xi minus x double bar whole square divided by summation ni. If two sets of data consisting
n1 and n2 values having s1 square and s2 square respectively, the combined variance of both sets of data is given by s square is equal to n1 s1 square plus n2 s2 square divided by n1 plus n2 plus n1 plus n2 divided by n1 plus n2 whole square into x1 bar minus x2 bar whole square. ठीक है. The sixth property is the variance of the sum or difference of two independent random variable is the sum of their respective variances. Thus, if x and y are independent random variables, then variance of x plus y is equal to variance of x plus variance of y, and variance of x minus y is equal to variance of x plus variance of y. अब आप देखें होल स्क्वायर जब आप खोलते हैं ना, तो उसमें ए और बी का या एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर आप देखें जब वो खोलते हैं तो उसमें किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर होता है माइनस 2ab उसमें आ जाएगा, और प्लस का जब होल स्क्वायर एक्स प्लस वाई या ए प्लस बी का जब आप होल स्क्वायर खोलते हैं तो वो इक्वल आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. ठीक है. तो अब ये जो माइनस 2ab या प्लस 2ab ये जो कोवेरियंस टर्म होती है, और कोवेरियंस टर्म जो है वो इसके अंदर ज़ीरो हो जाती है. तो ये दोनों सूरतों में अगर वेरियंस ऑफ x प्लस वाई जो है प्लस में है या माइनस में, दोनों में ये इक्वल होगा इनके इंडिविजुअल वेरियंसेस के एडिशन के. ठीक है. कि variance of x plus y is equal to variance of x plus variance of y, and variance of x minus y is also equal to variance of x plus variance of y के. ठीक है. क्योंकि बच्चे इसमें गलती करते हैं और ये ऑब्जेक्टिव में भी ये चीज़ अक्सर पूछ लेते हैं, तो बच्चे ये गलती करते हैं तो x माइनस वाई अगर है तो x माइनस वेरियंस ऑफ x माइनस वेरियंस ऑफ y लगा देते हैं. ठीक है. तो इस चीज़ का आपने ख्याल करना है और इसको अच्छी तरह से देखना है. The next property is the sum has the minimal, the variance has the minimal property. This means that the variance is the minimum if and only if the deviations are taken from the mean. And it is equal to 1 over n summation xi minus a whole square is a minimum if and only if a is equal to x bar. The next property is for a normal distribution, the interval x bar minus s to x bar plus s includes 68.27% of the value, and the interval x bar minus 2s to x bar plus 2s includes 95.45% of the values. The interval x bar minus 3s to x bar plus 3s includes 99.735% of the values or area. Now the topic is standard deviation. It is defined as the positive square root of the arithmetic mean of the squares of deviations of values from their mean. It is denoted by S. It is denoted by sigma for population, and it is denoted by S for sample data. Sigma is equal to summation x minus mu whole square divided by n under root for population data, and S is equal to summation x minus x bar whole square divided by n under root for sample data. In other words, standard deviation is the positive square root of variance, that is S is equal to under root variance. Now, computational formulas for standard deviation. First, for ungrouped data, the first method is direct method.
S is equal to under root summation x minus x bar whole square by n, or summation x square by n minus summation x over n whole square under root. The second method is indirect or shortcut method. S is equal to summation d square by n minus summation d over n whole square under root, where d is equal to x minus a. यानी वेरिएंस का आप अंडर रूट ले लेंगे तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा. द थर्ड मेथड इज स्टेप डेविएशन और कोडिंग मेथड. s is equal to summation u square over n minus summation u over n whole square under root into h. Now formulas for group data. The first method is direct method. S is equal to under root summation f into x minus x bar whole square divided by summation f, or summation fx square divided by summation f minus summation fx over summation f whole square under root. The second method is indirect or shortcut method. S is equal to summation f d square divided by summation f minus summation f d over summation f whole square under root, where d is equal to x minus a. The third method is coding or step deviation method. S is equal to summation f u square over summation f minus summation f u over summation f under root into h, where u is equal to x minus a over h, or it is equal to d divided by h. Now properties of standard deviation. प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल वेरिएंस की तरह हैं, थोड़ा सा बस इसमें फ़र्क है. जैसे वेरिएंस का फार्मूलाज वही हैं, सिर्फ उनका स्क्वायर रूट ले लें तो आपके पास वेरिएंस से स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा. ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ भी उसी तरह से हैं. द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज़ ज़ीरो, कि कांस्टेंट ए इज़ एनी कांस्टेंट और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो इक्वल टू ज़ीरो होगा. कोई भी कांस्टेंट हो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज़ीरो होगा. द सेकंड प्रॉपर्टी इज द स्टैंडर्ड डेविएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन. जैसा कि वेरिएंस जो था वो भी इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन था, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x प्लस माइनस ए इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ a, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू ज़ीरो होगा. तो ये इक्वल हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स के. ठीक है, कि और इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन. ओरिजिन का क्या मतलब है कि एक्स जो है वेरिएबल, उसमें कोई कांस्टेंट ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो, इस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा. ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स के इक्वल होगा. द थर्ड प्रॉपर्टी इज द स्टैंडर्ड डेविएशन इज इफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल. दैट इज इफ ऑल द वैल्यूज आर multiplied or divided by a constant, then their standard deviation is also multiplied or divided by that constant. It is written as standard deviation of ax is equal to a into standard deviation of x, and standard deviation of x over a is equal to 1 over a into standard deviation of x. अब वेरिएंस में था कि उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई होता था या उसके स्क्वायर से कांस्टेंट के स्क्वायर से डिवाइड होता था, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन में जो है स्क्वायर रूट चूँकि हम देते हैं तो उसके डायरेक्ट जो है वो कांस्टेंट से स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई होगा और 1 ओवर ए से यानी मल्टीप्लाई होगा, या ए पे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स जो है वो डिवाइड होगा. The fourth property is standard deviation is always non-negative. That is, standard deviation is greater than and equal to 0. कि स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू जो है, जैसा कि हमने वेरिएंस में भी बताया था, ज़ीरो हो सकती है या ग्रेटर देन ज़ीरो होगी, लेकिन नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती. द फिफ्थ प्रॉपर्टी इज द कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ सब ग्रुप्स of n1, n2 up to so on nk values having means x1 bar, x2 bar up to so on xk bar, and respective standard deviations are s1, s2 up to so on sk, is given by s is equal to under root summation ni si square plus xi minus x double bar whole square divided by summation ni. ये तो एक जनरल फार्मूला है. अब इसमें जो है आई 1 से लेकर 2 भी, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, एंड सो ऑन.
लेकिन अगर हमारे पास 2 सेट्स ऑफ डाटा हैं, यानी दो आपके पास जो हैं वो पॉपुलेशन है या दो वेरिएंस हैं या दो डिस्ट्रीब्यूशन हैं, तो उनके लिए आप ये फार्मूला जो नीचे अभी मैं बताने जा रही हूँ ये यूज़ करते हैं। ठीक है, इफ़ टू सेट्स ऑफ डाटा कंसिस्टिंग N1 and N2 values having S1 and S2 respectively, the combined standard deviation of both sets of data is given by S is equal to under root N1 S1 square plus N2 S2 square divided by N1 plus N2 plus N1 N2 divided by N1 plus N2 whole square into x1 bar minus x2 bar whole square. The sixth property is the standard deviation of the sum or difference of two independent random variables is the sum of their respective standard deviation. Thus, if x and y are independent random variables, then standard deviation of x plus y is equal to standard deviation of x plus standard deviation of y, and standard deviation of x minus y is also equal to standard deviation of x plus standard deviation of y. The seventh property is the standard deviation has the minimal property. This means that the standard deviation is a minimum if and only if the deviations are taken from the mean. In other words, 1 over n summation xi minus a whole square is a minimum if and only if this property provides the basis for defining the standard deviation as above. मेजर्स ऑफ रिलेटिव डिस्पर्शन। अभी तक जो हमने पढ़ा डिस्पर्शन के बारे में वो क्या था, एब्सोल्यूट। ठीक है, एब्सोल्यूट डिस्पर्शन थी। अब हम पढ़ेंगे रिलेटिव डिस्पर्शन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज द रिलेटिव डिस्पर्शन ऑफ वेरिएंस, और इसको हम डिनोट करते हैं CB से। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू S over x bar into 100. The most commonly used measures of relative dispersion is the coefficient of variation, which was introduced by Karl Pearson. It is denoted by CB. The coefficient of variation is independent of unit of implied. It is used in comparing dispersion of two or more series. It is also used as a criterion for consistent performance. The smaller the coefficient of variation, the more consistent the performance. कि कंसिस्टेंसी को जब हमने देखना होता है, किसी भी परफॉर्मेंस की कंसिस्टेंसी को हम देखते हैं, तो उसके लिए हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करते हैं, और जिस डिस्ट्रीब्यूशन का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम होगा वो मोर कंसिस्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन होगी। एग्जाम्पल 4.8b on page 151. Find the standard deviation for the values 2, 3, 6, 8 and 11. Here x bar is equal to, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमने स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला देखना है। स्टैंडर्ड डेविएशन किसके इक्वल है, अंडर रूट समेशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n के। ठीक है, अब इसके काफ़ी सारे फार्मूले मैंने आपको बताए हैं और कोई भी फार्मूला आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला अगर यूज़ करते हैं तो इसके लिए हमें सबसे पहले x बार चाहिए। ठीक है, अनग्रुप डेटा है हमारे पास, तो समेशन x ओवर n से हम x बार कैलकुलेट कर लेंगे। x की वैल्यू उसका सम लिया जो कि इक्वल टू समेशन x हमारे पास आ गया 30, और n नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं 5, उस पर डिवाइड किया तो x बार हमारे पास आ गया 6। ठीक है, अब हमने x माइनस एक्स बार का कॉलम फाइंड करना है। x हमारे पास है 2 माइनस एक्स बार है 6, 2 माइनस 6 माइनस 4 आ गई फर्स्ट वैल्यू, फिर 3 है सेकंड वैल्यू, 3 माइनस 6 माइनस 3 आ गई, 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2, इस तरह से 11 माइनस 6 इज इक्वल टू 5 हमारे पास आ गया।
अब हमें इसका स्क्वायर चाहिए, तो हम इस कॉलम का स्क्वायर ले लेंगे। 4 4 ज़ा 16, 3 3 ज़ा 9, 0 का 0 आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 5 5 ज़ा 25, और इस पूरे कॉलम का सम हमारे पास समेशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर आ रहा है 54। तो हम इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 54, एन हमारे पास है 5, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस हमारे पास आ जाएगा 10.8, और इसका अंडर रूट जब लेंगे तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा 3.286। नाउ एग्जांपल 4.9, find standard deviation for the following distribution of marks। ग्रुप डाटा है, हमें वैल्यूज़ दी गई हैं, क्लासेस हैं हमारे पास 20 to 24, 25 to 29, 30 to 34, 35 to 39, 40 to 44, 45 to 49, 50 to 54, और फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 1, 4, 8, 11, 15, 9, 2, और फ्रीक्वेंसी का सम हमारे पास आ रहा है 50। अब हमने फार्मूला क्या है हमारे पास स्टैंडर्ड डिवीजन का, वो हमने देखना है। s इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन f इंटू एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन f, ये फार्मूला है। अब इसी के मुताबिक हमने कॉलम्स जो हैं वो फाइंड करने हैं। सबसे पहले तो x बार के लिए हमें मीन जो है वो चाहिए, तो मीन का ग्रुप डाटा के लिए क्या फार्मूला है, सबसे सिंपल जो डायरेक्ट फार्मूला है वो लगाएंगे हम इसमें बाउंड नहीं है, ठीक है। तो हम सबसे पहले ये सिंपल जो फार्मूला है मीन का वो हम लगाते हैं ताकि हमें कैलकुलेशंस में आसानी हो। हम सबसे पहले x का कॉलम फाइंड करेंगे, फिर इस x के कॉलम को f के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो fx का कॉलम आ जाएगा, ठीक है। x आपको पता है क्या होते हैं, मिड पॉइंट्स होते हैं। जैसे दो लिमिट्स का जो है वो मीन ले लेते हैं, 20 और 24, फर्स्ट क्लास की दो लिमिट्स हैं, 20 प्लस 24 डिवाइडेड बाय 2, इनका मीन लेंगे तो हमारे पास x आ जाएगा 22। इसी तरह से 25 प्लस 29 डिवाइडेड बाय 2, ये आपके पास नेक्स्ट जो मिड पॉइंट है वो है 27। इसी तरह से x जो है मिड पॉइंट्स हम ये फाइंड कर लेंगे। अब इनको फ्रीक्वेंसी के कॉलम से कोरेस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसीज हैं उससे मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 22 इंटू 1 22 आ जाएगा, 27 इंटू 4 108 आ जाएगा, 32 इंटू 8 ये आ जाएगा 256, 37 इंटू 11 ये आ जाएगा 407, 15 इंटू 42 ये वैल्यू आ जाएगी 630, 9 इंटू 47 वैल्यू आ जाएगी 423, और 2 इंटू 52 ये आ जाएगी 104, और इस पूरे कॉलम का सम जो है वो आ रहा है 1950। अब हमने मीन का फार्मूला लगाया, मीन का क्या फार्मूला है, सिंपल डायरेक्ट जो फार्मूला है समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। अब समेशन एफ एक्स हमारे पास क्या आया है 1950, और समेशन एफ की वैल्यू है हमारे पास 50, तो हमारे पास मीन आ जाएगा 39। अब हमने स्टैंडर्ड डिवीजन के लिए कॉलम फाइंड करना है x माइनस एक्स बार का, ठीक है। x हमारे पास क्या है 22 है, और माइनस हमारे पास जो मीन है वो है 39, तो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -17। इसी तरह से 27 है नेक्स्ट x की वैल्यू, उसमें से हमने 39 को माइनस किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई -12। फिर 32 माइनस 39 हमारे पास वैल्यू आ गई -7, 37 माइनस 39 वैल्यू आ जाएगी -2, ठीक है। इसी तरह से 42 माइनस 39 वैल्यू आ जाएगी 3, 47 माइनस 39 ये वैल्यू आ जाएगी 8, इसी तरह से 52 माइनस 39 ये वैल्यू आ जाएगी 13। अब हमने इस कॉलम का जो है इसको फ्रीक्वेंसी के कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, या फिर पहले इसका हम स्क्वायर ले लें, ठीक है। हम इसका स्क्वायर ले लेंगे इस कॉलम का, और फिर उसके बाद उसको फ्रीक्वेंसी के कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो f इंटू एक्स माइनस एक्स बार जो है, अगर फ्रीक्वेंसी के कॉलम से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट जो x माइनस एक्स बार है वो है -17, ठीक है। उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे 1 है तो -17 ही आ जाएगा। इसी तरह से 27 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -48 आ जाएगा,
और फिर हम -7 को किसको -12 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो -48 आ जाएगा। -7 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे -56। इसी तरह से हम पूरे x माइनस एक्स बार के कॉलम को f से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर नेक्स्ट कॉलम में x माइनस एक्स बार का जो है वो होल स्क्वायर लेंगे और उसको फ्रीक्वेंसी के कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी और समेशन f इंटू एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर हमारे पास आ रहा है 2350। ठीक है, अब स्टैंडर्ड डेविएशन हमने फाइंड करना है, तो समेशन f इंटू एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर जो है वो हमारे पास आ रहा है 2350 डिवाइडेड बाय समेशन f है 50, तो √47 आएगा और इसका अंडर रूट जब लेंगे तो 6.86, या फिर इसको हम क्योंकि मार्क्स हैं तो हम इसको जो है अप्रोक्सीमेटली 7 कह देंगे। ठीक है, ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है 4.11। 4.11 एग्जांपल है, इसमें अनग्रुप डाटा दिया गया है और उसको हम अनग्रुप डाटा है हमारे पास। फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द वैल्यूज 2, 3, 6, 8 एंड 11। ठीक है, हमने इस फार्मूला से इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो फाइंड किया, समेशन एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन होल स्क्वायर। ये फार्मूला भी आपको पीछे मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, अब इसमें हमें कॉलम कौन से चाहिए, एक्स तो हमारे पास है और एन जो है वो इक्वल टू 5 है। 5 है नंबर ऑफ वैल्यूज और एक्स हमारे पास है, हमने एक्स स्क्वायर का कॉलम फाइंड करना है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर हमारे पास आ रहा है 2 2 4, 3 3 9, 6 6 36, 8 8 64 और 11 11 121, तो ये सम आ रहा है 234। ठीक है, समेशन एक्स स्क्वायर की जगह हम क्या लगा देंगे, उसका सम 234, उसकी वैल्यू पुट करेंगे डिवाइडेड बाय एन जो है अनग्रुप डाटा है तो नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड करेंगे। नंबर ऑफ वैल्यूज हैं 5। ठीक है, माइनस समेशन एक्स हमारे पास है 30 डिवाइडेड बाय एन है 5 और होल स्क्वायर। ठीक है, इसका जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास √10.8 आती है वैल्यू और उसका अंडर रूट जब लेते हैं तो स्टैंडर्ड डिवीजन हमारे पास आ जाता है 3.286। इसी तरह से एग्जांपल है 4.12। फाइंड स्टैंडर्ड डिवीजन फॉर द फॉलोइंग डाटा। ठीक है, अब ये डिस्क्रीट डाटा है हमारे पास, x की वैल्यूज भी हैं और फ्रीक्वेंसी भी है। अब x की वैल्यूज हैं 1 से लेकर 7 तक और फ्रीक्वेंसी है 4, 25, 53, 18, 11, 7, 2। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज हैं। फ्रीक्वेंसी का सम जो है वो 120 आ रहा है, तो fx हम ले लेंगे। अब इसका फार्मूला स्टैंडर्ड डिवीजन का ये भी है, डायरेक्ट फार्मूला समेशन एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन एफ माइनस समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ होल स्क्वायर। ठीक है, अब समेशन एफ एक्स स्क्वायर का कॉलम जो है एक्स का स्क्वायर लेंगे एक्स के कॉलम का और उसको फ्रीक्वेंसी के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसका एफ एक्स का स्क्वायर और उसको फ्रीक्वेंसी के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका सम जो है एफ एक्स स्क्वायर का वो आ रहा है 1494। ठीक है, उसकी वैल्यू उधर पुट करेंगे, समेशन एफ है 120 माइनस समेशन एफ एक्स का जो कॉलम है उसका सम हमारे पास आ रहा है 396 डिवाइडेड बाय समेशन एफ 120 और पूरे का होल स्क्वायर, और जब इसको सॉल्व करेंगे और इसका अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड डिवीजन आ रहा है 1.25। एग्जाम्पल है 4.14। गिवन n इज इक्वल टू 6। इसका ए पार्ट है, फाइंड स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ द वैल्यूज 105, 128, 117 एंड 113 एंड 121। ठीक है, अब इसको हमने करना है। अब हमें उन्होंने क्वेश्चन में ये नहीं कहा कि आप किस मेथड से करें, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट मेथड से करके बता रही हूँ। ठीक है, तो शॉर्टकट मेथड हम यूज़ कर रहे हैं और उसमें स्टैंडर्ड डिवीजन का फार्मूला है s इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन डी स्क्वेयर बाय एन माइनस समेशन डी ओवर एन होल स्क्वेयर। ठीक है, इसके लिए अब हमें x की वैल्यूज़ गिवन है और हमें इसके लिए d चाहिए
और डी किसके इक्वल होता है, x माइनस ए के। ए क्या है, एज्यूम्ड मीन है। अब इसमें से हम देखते हैं कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज़ जो हैं वो ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं, तो फिर हम दरमियान की जो वैल्यू होती है उसको हम एज एज्यूम मीन ले लेते हैं, या फिर इस सीरीज़ में से कोई भी एक वैल्यू जो है हम उसको एज्यूम्ड होती है चूँकि, तो हम कोई भी वैल्यू जो है वो एज्यूम कर सकते हैं एज अ मीन। ठीक है, तो ये एज्यूम मीन होगा। तो हम यहाँ पे जो मैंने आपको बेस्ट मेथड बताया था वो यही बताया था कि अनग्रुप डाटा है तो उसमें अगर आपके पास ऑड नंबर ऑफ डाटा है तो मिड वैल्यू ले लें, और अगर इवन नंबर ऑफ डाटा है तो उसमें दरमियान की दो वैल्यूज़ का मीन ले लेते हैं। ठीक है, तो हम डी का कॉलम फाइंड कर लेंगे जो कि इक्वल है x माइनस ए के। x आपके पास 105 है और एज्यूम मीन हमने क्या लिया है, 117। तो ये फर्स्ट वैल्यू आ गई -12। फिर हमने 128 में से माइनस किया 117 को, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 11, और 117 माइनस 117 इक्वल टू 0 आ जाएगा। 113 माइनस 117 ये आ जाएगा -4, और 121 माइनस 117 ये वैल्यू आ जाएगी 4, और d का जो सम है वो हमारे पास -1 आ रहा है। हमने d स्क्वायर लेना है, अब d के कॉलम का स्क्वायर लेना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 144, 121, 0, 16 एंड 16, और इसका सम आ रहा है डी स्क्वायर का 297। अब हमारे पास जो फार्मूला है उसमें हमने वैल्यूज पुट करनी है। समेशन डी स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे 297 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज हैं हमारे पास 5, माइनस समेशन डी आ रहा है -1 डिवाइडेड बाय n जो है नंबर ऑफ वैल्यूज वो 5 है होल स्क्वायर। इस सारे को सॉल्व करने से हमारे पास आता है 59.36 अंडर रूट, और इसका जब अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर आता है स्टैंडर्ड डिवीजन का 7.705। नेक्स्ट एग्जांपल है 14.14 का बी पार्ट है। इसमें वैल्यूज हमें गिवन है n इज इक्वल टू 6, समेशन x माइनस 18 इज इक्वल टू 15 एंड समेशन x माइनस 18 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 54। फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। इस किस्म का क्वेश्चन आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। ठीक है, n हमके पास 6 है और समेशन x माइनस 18 इज इक्वल टू 15। अब x माइनस 18 का क्या मतलब है, 18 जो है ये आपके पास x माइनस a होता है, और a जो है वो आपके पास 18 है। ठीक है, x माइनस a किसके इक्वल होता है, समेशन x माइनस a किसके इक्वल होगा, समेशन d के इक्वल होगा। ठीक है, तो समेशन d की वैल्यू आपको दी हुई है 15, और ये जो है समेशन x माइनस 18 होल स्क्वायर, ये आपको समेशन डी स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, और समेशन डी स्क्वायर आपको क्या दिया हुआ है 54। ठीक है, और a की वैल्यू आपके पास है 18। अब इसी से ही आपने सारा डाटा जो है वो देख लिया। अब आपने जो है स्टैंडर्ड डिवीजन का फार्मूला, शॉर्टकट फार्मूला आपने इसमें यूज करना है। ठीक है, आप उसको क्वेश्चन की मुनासबत से आप फार्मूला जो है वो चूज करेंगे। तो स्टैंडर्ड डिवीजन किसके इक्वल है, अंडर रूट समेशन डी स्क्वायर बाय एन माइनस समेशन डी ओवर एन होल स्क्वायर। अब समेशन डी स्क्वायर क्या है आपके पास 54 है, डिवाइडेड बाय एन आपके पास है 6, माइनस समेशन डी है 15 डिवाइडेड बाय एन 6 है होल स्क्वायर। तो आपके पास ये आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट 2.75, और जब इसका अंडर रूट हम लेंगे तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा 1.658। अच्छा, नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है 4.15, फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेस्ट मेजरमेंट्स ऑफ 40 चिल्ड्रन। अब वेस्ट मेजरमेंट्स हैं यानी क्लासेस हैं आपके पास 20 to 22, 23 to 25, 26 to 28 और 29 to 31 एंड सो ऑन। लास्ट आपके पास है क्लास 44 to 46, और फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 1, 2, 4, 7, 9, 10, 4, 2, 1, और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है 40। ठीक है, अब आपने फार्मूला कोई भी, आप इसमें बाउंड नहीं है, आपने कोई भी फार्मूला आप इसमें लगा सकते हैं। आप डायरेक्ट फार्मूला इसमें यूज करें, आप शॉर्टकट फार्मूला इसमें यूज करें, आप कोडिंग मेथड इसमें कोई भी आप यूज कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी पे है। मैंने यहाँ पे आपको शॉर्टकट मेथड जो है वो यूज करके दिखाया है, क्योंकि शॉर्टकट मेथड मैंने अनग्रुप डाटा के लिए भी आपको बताया, अब ग्रुप डाटा के लिए भी आप देखें।
f आपके पास है और आपको क्या चाहिए, x चाहिए पहले, क्योंकि d जो है वो किसके इक्वल होता है, x माइनस a के इक्वल होता है। अब सबसे पहले आपने x फाइंड करना है। x आपको पता है क्या होते हैं, मिड पॉइंट्स होते हैं। जैसे टू लिमिट्स का हमने मीन ले लेना है। 20 प्लस 22 डिवाइडेड बाय 2, हमारे पास फर्स्ट x की वैल्यू आ गई 21। इसी तरह नेक्स्ट आ जाएगी 24, उससे अगली 27, और ये सारी वैल्यूज x की हम इसी तरह से दो लिमिट्स का मीन लेके हम फाइंड कर लेंगे। अब हमारे पास ये नंबर ऑफ वैल्यूज जो हैं ये हमारे पास क्या है, इवन है या ऑड है, ये देखना है हमने। ठीक है, हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज जो हैं ये ऑड हैं, तो इसमें जो दरमियान की वैल्यू है वो है 33। तो 33 को हम एज एज्यूम्ड मीन ले लेते हैं। ठीक है, तो डी का कॉलम हमने फाइंड करना है जो कि इक्वल होता है x माइनस ए के, और ए यहाँ पे हमने क्या लिया है 33। तो x आपका फर्स्ट जो है वो 21 है, 21 माइनस 33, आपका फर्स्ट d की वैल्यू आ जाएगी -4, और सेकंड d की वैल्यू आपकी 24 माइनस 33 -3 आ जाएगी। इससे अगली -2 -1 0 1 2 3 एंड 4, ये आपके पास d का कॉलम आ जाएगा। फिर आपने इस d के कॉलम को f के कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, f d का कॉलम आ जाएगा और उसका सम आपके पास आ रहा है 3। फिर आपने d के कॉलम का स्क्वायर लेते जाना है और f के कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 4 4 जा 16, और उसको फिर फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करें। 16 1 जा 16, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। तो ये आपके पास एफ डी स्क्वायर का कॉलम आ जाएगा इस तरह से। 1 1 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 4 जा 16। इसी तरह से 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, और उसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आ जाएगा। इस तरह से आपने एफ डी स्क्वायर का कॉलम फाइंड कर लिया, और उसका सम आ रहा है 117। स्टैंडर्ड डिवीजन का जो फार्मूला है हमारे पास, शॉर्टकट फार्मूला, वो है अंडर रूट एफ समेशन एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन एफ माइनस समेशन एफ डी डिवाइडेड बाय समेशन एफ होल स्क्वायर। अब समेशन एफ डी स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे जो कि है 117 डिवाइडेड बाय समेशन एफ है हमारे पास 40 माइनस समेशन एफ डी की वैल्यू हमारे पास जो है इस कॉलम का जो सम आ रहा है वो है 3 डिवाइडेड बाय समेशन एफ 40 होल स्क्वायर। इस सारे को सॉल्व करने से हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 2.9194, और इसका अंडर रूट जब लेंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड डिवीजन की वैल्यू आ जाएगी 1.71 सेंटीमीटर। एग्जाम्पल है 4.17। अब मैं आज सारे मेथड्स के साथ आपको ये क्वेश्चन जो है स्टैंडर्ड डिवीजन या वेरिएंस करके बता रही हूँ, जिसमें मैंने पहले डायरेक्ट मेथड से किया, फिर शॉर्टकट मेथड से, फिर कोडिंग मेथड। ठीक है, ये सारा आपको सॉल्व करके बताऊंगी। अभी जो हम एग्जाम्पल 4.17 करने जा रहे हैं, ये डाटा हमने जो है कहाँ से लिया है, ये चैप्टर 3 में भी आपने यूज़ किया ये डाटा। तो ये डाटा वहाँ से हमने लिया है, और वेट्स वाला इस पे काफ़ी सारे मेथड्स जो हैं हम अप्लाई कर चुके हैं। तो अभी हम इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने जा रहे हैं कोडिंग मेथड से। ठीक है, वेट्स है हमारे पास 110 to 119 और 120 to 129, 130 to 139 एंड अप टू 210 to 219, और फ्रीक्वेंसी गिवन है 1 4 17 28 25 अप टू ऑन। और ये जो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास आ रहा है 120। ठीक है, अब इसमें देखें आपको स्टैंडर्ड डिवीजन का जो कोडिंग मेथड का फार्मूला है वो क्या है। S is equal to under root summation f u square divided by summation f minus summation f u over summation f whole square into h। h जो है ये अंडर रूट के बाहर है। ठीक है ना, अब h क्या है, क्लास इंटरवल साइज है, और u का कॉलम हम फाइंड करेंगे, फिर f के कॉलम से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ यू आ जाएगा, और इसी तरह से एफ यू स्क्वायर, यू के कॉलम का स्क्वायर लेंगे और उसको फ्रीक्वेंसी के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसके लिए क्योंकि u की जो फार्मूला है वो क्या है, x माइनस ए ओवर एच होता है। ठीक है, अब a हमने क्या लिया, सबसे पहले इसके लिए हमें x चाहिए, x हम फाइंड करेंगे मिड पॉइंट्स,
और वो आपको पता है टू लिमिट्स का मीन ले लेते हैं। जैसे 110 प्लस 119 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास x आ जाएगा 114.5। इसी तरह से नेक्स्ट आ जाएगा 124.5, 134.5, 144.5। अब a जो है वो एज्यूम मीन होता है, तो हम कोई भी वैल्यू इसमें हम दे सकते हैं। ज़्यादा बेस्ट मैंने आपको बताया था कि अगर ऑड नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं तो मिड वैल्यू ले लें, और अगर इवन नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं तो दरमियान की दो वैल्यूज़ जो हैं उनका आपने मीन ले लेना है। तो या फिर कोई भी वैल्यू आप इसमें से ले सकते हैं। तो 144.5 जो है एज एज्यूम मीन यहाँ पे दिया है। एच जो है इनमें क्लास इंटरवल साइज देखें 10-10 का आ रहा है। आप इसमें देखें एक्स में भी आपको पता चल रहा है 114.5 है, तो अगली है 124.5। कितना डिफरेंस है इसके अंदर, 10 का डिफरेंस है। ठीक है, एच आपका क्या है, 10 है। अब आपने यू का कॉलम कैलकुलेट करना है, एक्स की वैल्यू पुट करनी है 114.5 माइनस 114.5 144.5 डिवाइडेड बाई 10। तो आपके पास फर्स्ट जो u की वैल्यू होगी वो -3, फिर 124.5 माइनस 144.5 डिवाइडेड बाई 10, तो ये आ जाएगी -2। इसी तरह से 134.5 माइनस 144.5, ये आ जाएगी वैल्यू -1। इसी तरह से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ये आपने u का कॉलम फाइंड कर दिया। अब आपने इस u के पूरे कॉलम को फ्रीक्वेंसी के कॉलम से मल्टीप्लाई करते जाना है। -3 और उसकी कोरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है 1, तो ये आ जाएगी -3। -2 और उसके कोरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 4 है, तो -8 आ जाएगा। 4 2 8 और -8 आ जाएगा। इसी तरह से -1 के साथ 17 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास -17 आ जाएगा, और 28 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। 25 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 25 आ जाएगा। 18 को 2 के साथ मल्टीप्लाई 36, इसी तरह से 13 को 3 के साथ तो 39 एंड सो ऑन। ये सारा एफ यू का कॉलम आ जाएगा। अब नेक्स्ट कॉलम आपको एफ यू स्क्वायर का चाहिए। अब इसमें आपने ये नहीं करना कि एफ यू का आप स्क्वायर ले लें, आपने नहीं, यू के कॉलम का स्क्वायर लेना है और उसको फ्रीक्वेंसी के कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। यू के कॉलम का स्क्वायर फर्स्ट क्या 3 3 9 आ जाएगा, उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा। 2 2 4 आ जाएगा, 4 4 16। इसी तरह से 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगी 17। इसी तरह से 28 0 0, 25 1 5, और 2 2 4 4 18 72। इसी तरह से एफ यू स्क्वायर का कॉलम आपके पास आ जाएगा, जिसका सम आ रहा है 598, और एफ यू का सम है 140। अब आपने फार्मूले में ये वैल्यूज पुट करनी है। एफ यू स्क्वायर की वैल्यू उसकी जगह पुट करेंगे, वो है 598 डिवाइडेड बाय समेशन एफ है 120 माइनस समेशन एफ यू है 140 डिवाइडेड बाय समेशन एफ है 120 होल स्क्वायर इंटू 10 जो है वो अंडर रूट के बाहर है। ठीक है, अब इस सारे को सॉल्व करेंगे, अंडर रूट लेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ गई 19.03 पाउंड्स। अब नेक्स्ट जो एग्जांपल है 14.18, ठीक है, उसको आपने करना है, और उसमें है फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डाटा, और डाटा आपको गिवन है 12.5, 13.0, एक्स की वैल्यूज़ हैं और फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, डिस्क्रीट डाटा है आपके पास। अब इस पे भी हमने कोडिंग मेथड जो है वो अप्लाई किया है, और इसमें फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, एक्स की वैल्यूज गिवन है, आपने यू का कॉलम इससे फाइंड करना है, फिर एफ यू का कॉलम, फिर एफ यू स्क्वायर का कॉलम आपने फाइंड करना है। तो स्टैंडर्ड डिवीजन का फार्मूला आपने लगाना है, एफ यू स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट करनी है, और समेशन एफ की वैल्यू पुट करनी है, फिर समेशन एफ यू की वैल्यू पुट करनी है, और समेशन एफ की और उसका होल स्क्वायर लेना है, और एच से मल्टीप्लाई करना है। अब एच इसमें देखें क्या आ रहा है 12.5 और फिर है 13.0, कितने का डिफरेंस है इनके दरमियान, 13 में से 12.5 माइनस करें तो आपके पास 0.5 आता है। इसी तरह से सब में देखें इक्वल उसका इंटरवल चल रहा है, वो है 0.5 का, तो h की जगह हम क्या लिख देंगे 0.5, और इस सारे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अंडर रूट आता है 2.3211, और इसका अंडर रूट लेने के बाद जो भी वैल्यू आएगी उसको हम 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास स्टैंडर्ड डिवीजन आ जाता है 0.762।
Now question number 4.6 part A from your exercise on page 204. Calculate standard deviation using using arithmetic mean and also using any provisional mean and compare the results for the values 3, 5, 7, 13, 15, 17, 23 and 27. ठीक है, ये अनग्रुप डाटा है, आपके पास वैल्यूज़ हैं और उसने आपको जो कहा है पहले डायरेक्ट मेथड से फिर प्रोविजनल मीन से। क्या मतलब है कि शॉर्टकट मेथड आपने यूज़ करना है। ठीक है, आपने पहले डायरेक्ट मेथड यानी यूजिंग एरिथमेटिक मीन आपने वो फाइंड करना है। अब उसका फार्मूला क्या है स्टैंडर्ड डिवीजन का, अंडर रूट समेशन एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन होल स्क्वायर। इस फार्मूले के मुताबिक आपने कॉलम फाइंड करने हैं। एक्स आपको गिवन है, एक्स स्क्वायर का कॉलम आपने फाइंड करना है। ठीक है, x आपके पास ये है और आपने दरमियान की दो इवन नंबर ऑफ डाटा है, चूंकि आपके पास इवन नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं तो आप दरमियान की दो वैल्यूज़ का मीन ले लेते हैं जो कि ज़्यूम मीन है 14 आ जाएगा। ए हमारे पास क्या आ जाएगा 14। ठीक है, ये हम शॉर्टकट मेथड में यूज़ करेंगे। हमें अभी डायरेक्ट मेथड के लिए डायरेक्ट x का हम सम लेंगे जो कि 110 आ रहा है और एक्स स्क्वायर हम फाइंड करेंगे, एक्स स्क्वायर का कॉलम 3 3 ज़ा 9, 5 5 ज़ा 25, 7 7 ज़ा 49, पूरा कॉलम इस तरह से फाइंड करके उसका सम हमारे पास आ जाएगा 2024। ठीक है, अब हमने ये वैल्यूज़ पुट करनी है फार्मूला में। समेशन एक्स स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू हम पुट करेंगे 2024 डिवाइडेड बाय एन है हमारे पास, नंबर ऑफ वैल्यूज़ 8 है हमारे पास, माइनस समेशन एक्स आ रहा है हमारे पास 110 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़ 8 हैं, होल स्क्वायर उसका लेंगे और फिर इसका वैल्यूज़ जो हमारे पास आ रही हैं 253 माइनस 189.0625, इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास अंडर रूट 63.9375 और इसका अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा स्टैंडर्ड डिवीजन का बाय यूजिंग अरिथमेटिक मीन 7.9961। सेकेंड उसने कहा है कि यूजिंग प्रोविजनल मीन यानी शॉर्टकट मेथड आपने यूज़ करना है। अब प्रोविजनल मीन मैं आपको जैसे बता चुकी हूँ कि दरमियान की दो वैल्यूज़ इवन नंबर ऑफ डाटा है, दरमियान की दो वैल्यूज़ का हम मीन ले लेते हैं और उसी को हम एज्यूम मीन कहते हैं। ठीक है, हमने डी का कॉलम अब फाइंड करना है क्योंकि हमारा जो शॉर्टकट का फार्मूला है वो क्या है, अनग्रुप डाटा का एस इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन डी स्क्वायर बाई एन माइनस समेशन डी ओवर एन होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें डी और डी स्क्वायर का कॉलम चाहिए। डी किसके इक्वल होता है, x माइनस ए के। x हमारे पास है 3 और a हमने जो फाइंड किया वो है 14, तो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू -11 आ जाएगी। इसी तरह से नेक्स्ट -9, डी का कॉलम हम फाइंड कर देंगे और इसका सम हमारे पास आ रहा है -2। फिर हमने हर एक वैल्यू का स्क्वायर ले लेना है तो इससे हमारे पास डी स्क्वायर का कॉलम आ जाएगा और उसका सम आ रहा है 512। अब हमने फार्मूला में इनकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। समेशन डी स्क्वायर हमारे पास है 512 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज 8 हैं, माइनस समेशन डी है -2 और नंबर ऑफ वैल्यूज हैं 8 होल स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास स्टैंडर्ड इस सारे को सॉल्व करने के बाद हमारे पास अंडर रूट लेंगे और स्टैंडर्ड डिवीजन आ रहा है 7.9961। ठीक है, अब इसमें देखें दोनों मेथड हमने यूज़ किए तो दोनों से ही हमारे पास आंसर जो है वो सेम आ रहा है। ठीक है, तो यही चीज़ उसने कहा है कि कंपेयर द रिजल्ट्स फॉर द वैल्यूज। ठीक है, हमने दोनों मेथड से फाइंड करना है और उसको कंपेयर करना है। तो आप लिख सकते हैं कि बाय यूजिंग अरिथमेटिक मीन वी हैव फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन या वी हैव कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन बाय यूजिंग अरिथमेटिक मीन या डायरेक्ट मेथड उसको ब्रैकेट में लिखते हैं साथ, या फिर बाय यूजिंग प्रोविजनल मीन एंड और शॉर्टकट मेथड। ठीक है, बोथ हैव द सेम आंसर। ठीक है, बी पार्ट इसका है, बी पार्ट है फॉर अ सेट ऑफ अनग्रुप्ड वैल्यूज द फॉलोइंग सम्स आर फाउंड, n इज इक्वल टू 15, समेशन x इज इक्वल टू 480, समेशन x स्क्वायर इज इक्वल टू 15735, फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इस किस्म का क्वेश्चन आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है पेपर में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है।
तो हमें जो वैल्यूज़ दी गई हैं हम उसी के मुताबिक स्टैंडर्ड डिवीजन का फार्मूला लगाएंगे। समेशन एक्स और समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यूज़ गिवन है तो हम उसी के मुताबिक कौन सा फार्मूला लगाएंगे, एस इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन होल स्क्वायर। ठीक है, इनकी जगह इसकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे और अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड डिवीजन आ रहा है 5। तो फिर हमने एक्स बार फाइंड करना है, एक्स बार क्योंकि हमें चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए। एक्स बार मीन हमारे पास क्या आ जाएगा, समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। समेशन एक्स है 480 और एन आपके पास है 15, तो एक्स बार आ जाएगा 32। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का क्या फार्मूला है, एस ओवर एक्स बार। एस क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन, और एक्स बार है मीन, ठीक है, इंटू 100। तो स्टैंडर्ड डिवीजन हमारे पास आ रहा है 5 और एक्स बार मीन है, मीन हमारे पास आ रहा है 32। तो इसको डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ रहा है 15.625%। सी पार्ट है, given x bar is equal to 10 and variance of x is equal to 4, find y bar and variance of y bar when number 1 y is equal to 2x minus 1, number 2 y is equal to 4 plus 3x divided by 3। ये पेपर में आ चुका है शॉर्ट क्वेश्चंस में, ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अब हमने क्या करना है, y इज इक्वल टू 2x माइनस 1, फर्स्ट ये है हमारे पास, हमने इसका मीन भी फाइंड करना है, ठीक है, और इसका वेरिएंस ऑफ y बार भी फाइंड करना है। मीन क्या होगा, y बार इज इक्वल टू 2x बार माइनस 1। आपने मीन की प्रॉपर्टीज अगर आपको याद हो तो आपने पढ़ा था कि जब हम इसका मीन लेते हैं तो वो इक्वल हो जाता है किसके, दूसरे वेरिएबल के मीन के, ठीक है। तो जब y का मीन लेंगे तो इसका x का भी मीन हो जाएगा। y बार इज इक्वल टू 2x बार माइनस 1, तो किसके इक्वल हो जाएगा, 2 इंटू एक्स बार, हमें क्वेश्चन में गिवन है 10, 10 टू ज़ा 20, 20 माइनस 1, y बार हमारे पास आ जाएगा 19। अब हमने वेरिएंस ऑफ y बार फाइंड करना है, ठीक है। वेरिएंस ऑफ y बार कैसे करेंगे फाइंड, वेरिएंस ऑफ 2x माइनस 1 इसके इक्वल हो जाएगा। तो वेरिएंस ऑफ 2x माइनस वेरिएंस ऑफ 1 क्या है, कांस्टेंट है, और आपने अभी पीछे पढ़ा था प्रॉपर्टीज में कि वेरिएंस ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0 होता है। तो आपके पास वेरिएंस ऑफ 2x रह जाएगा पीछे। अब 2 इसमें कांस्टेंट है, जब कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो उसका वेरिएंस जब हम लेते हैं तो उसका स्क्वायर हो जाता है, फिर उस कांस्टेंट का स्क्वायर जो है उस वेरिएंस ऑफ वेरिएबल के वेरिएंस के साथ मल्टीप्लाई होता है। ये भी आपने प्रॉपर्टीज में पढ़ा है। तो क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ एक्स के इक्वल हो जाएगा। 2 स्क्वायर का जब हम स्क्वायर लेंगे 2 का तो 4 आ जाएगा, और वेरिएंस ऑफ एक्स हमें गिवन है क्वेश्चन में 4, तो 4 4 ज़ा 16, वेरिएंस ऑफ y बार हमारे पास आ गया 16। अब जैसे ऊपर आपने मीन का पढ़ा था, इसमें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y, आपने एक्सपेक्टेशन जब इसकी हम लेते हैं तो एक्सपेक्टेशन ऑफ कांस्टेंट जो है वो इक्वल टू उसके मीन के होती है ना, कांस्टेंट की तो इक्वल टू 1 ही हो जाएगी। कांस्टेंट की जब एक्सपेक्टेशन लेते हैं या मीन ऑफ अ कांस्टेंट जो है उस कांस्टेंट के इक्वल होता है, जैसे मीन ऑफ 1 जो है वो 1 के ही इक्वल होगा। और 2 को हम जब x का हम लेंगे एक्सपेक्टेशन या उसका मीन तो x बार हो जाएगा, और 2 कांस्टेंट है वो उसके साथ ऐसे ही आएगा, इसलिए हमने इसको 2x बार माइनस 1 लिखा था। और नीचे वेरिएंस की प्रॉपर्टीज अभी आपने पढ़ी हैं, तो वेरिएंस ऑफ y बार जब वेरिएंस इससे मल्टीप्लाई होगा तो वेरिएंस ऑफ कांस्टेंट 0 हो जाएगा, और वेरिएंस ऑफ 2x जो है 2 का स्क्वायर और वेरिएंस ऑफ x आ जाएगा, और वेरिएंस ऑफ x की जो वैल्यू गिवन है वो पुट करेंगे तो हमारे पास वेरिएंस ऑफ y बार आ गया 16। सेकेंड इसका जो पार्ट है वो है y इज इक्वल टू 4 प्लस 3x डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। जब इसका मीन हम लेते हैं तो y बार किसके इक्वल हो जाएगा, 4 प्लस 3x बार डिवाइडेड बाय 3 के, ठीक है। अब 4 प्लस 3 इंटू एक्स बार की वैल्यू हमें गिवन है 10, 10 3 ज़ा 30 हो जाएगा, 30 प्लस 4 34 डिवाइडेड बाय 3, तो हमारे पास y बार की वैल्यू आ जाएगी 11.33, ठीक है। तो वेरिएंस ऑफ y, अब इसी y इज इक्वल टू 4 प्लस 3x डिवाइडेड बाई 3 का हम वेरिएंस लेंगे। इस पे जब वेरिएंस अप्लाई करते हैं तो 1/3, 3 कांस्टेंट है उस पे डिवाइड हो रहा है, तो ये बाहर जब आएगा वेरिएंस के तो ये उसका स्क्वायर हो जाएगा 1/3 स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ 4 प्लस 3x। अब वेरिएंस को जब इनसे मल्टीप्लाई करते हैं
तो वेरिएंस ऑफ 4 जो है ये कांस्टेंट है, प्लस वेरिएंस ऑफ 3x हो जाएगा, और वेरिएंस ऑफ 4 जो है ये कांस्टेंट, इसका वेरिएंस 0 हो जाएगा, और वेरिएंस ऑफ 3x जो है 3 कांस्टेंट है जो कि x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा 3 स्क्वायर इंटू वेरियंस ऑफ x के, ठीक है, 9 इंटू वेरियंस ऑफ x। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/3 का स्क्वायर 1/9 आ जाएगा, 1/9 इंटू 9 इंटू वेरियंस ऑफ x की वैल्यू हमें गिवन है 4, तो 9 इंटू 4 हो जाएगा, 9 9 से कैंसिल हो जाएगा, तो वेरियंस ऑफ y हमारे पास आ जाएगा 4। Now the next question is 4.8. Determine standard deviation and the coefficient of variation for the following frequency distribution. अगर आपको जो है कोई मेथड इस तरह कहा हुआ नहीं है कि आप इसमें शॉर्टकट मेथड करें या जो है कोडिंग मेथड यूज़ करें, या कोई अगर नहीं कहा गया तो फिर आप सिंपल ये डायरेक्ट मेथड जो है ये यूज़ किया करें, क्योंकि कैलकुलेशंस भी आसान है और इसमें आपको मतलब अच्छी तरह समझ आ सकता है। सिंपल से सिंपल मेथड जो है वो चूज़ करें, ठीक है। आपने फिर सिंपल ये डायरेक्ट मेथड यूज़ करना है। मीन में भी इसी तरह से आपको मैंने बताया था। तो अगर आपको वो कह देते हैं तो फिर तो आप बाउंड हैं कि आप ये वाला मेथड यूज़ करें या ये वाला मेथड यूज़ करें, ठीक है। अगर नहीं कहा गया कुछ भी और सिंपली आपसे जैसे इस क्वेश्चन में कहा गया कि आप स्टैंडर्ड डिवीजन फाइंड करें और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो आप सिंपल मेथड डायरेक्ट मेथड इसमें यूज़ करें, ठीक है। क्वेश्चन है आपके पास 20 to 24, 25 to 29, 30 to 34, और इसी तरह से ये सारी आपको क्लासेस दी गई हैं अप टू 50 to 54, और फ्रीक्वेंसी गिवन है, ग्रुप डाटा है आपके पास। तो आपने जो है स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए आपको मीन भी चाहिए होगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला अंडर रूट समेशन एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन एफ माइनस समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ होल स्क्वायर, ठीक है, ये है आपके पास। और फिर आपको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए एक्स बार भी चाहिए, तो एक्स बार भी फाइंड करना है जो कि इक्वल होता है समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ के, ठीक है। तो आपने एक्स का कॉलम फाइंड करना है, फिर एक्स के कॉलम को एफ के कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो एफ एक्स का कॉलम आ जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर लेना है, एक्स के कॉलम का स्क्वायर लेते जाना है, और हर एक वैल्यू का जैसे 22 का स्क्वायर लिया, फिर उसको फ्रीक्वेंसी से उसकी कोरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 1 है उससे मल्टीप्लाई किया, फिर 27 का स्क्वायर लिया, उसकी जो भी वैल्यू आई उसको 4 से मल्टीप्लाई किया, तो एफ एक्स स्क्वायर का हमारे पास कॉलम आ गया। अब हमने मीन फाइंड करना है जो कि इक्वल है समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। तो समेशन एफ एक्स का जो सम आ रहा है वो 1950 आ रहा है, और समेशन एफ आ रहा है 50, तो ये हमारे पास एक्स बार की वैल्यू आ गई 39, ठीक है। अब हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, तो समेशन एफ एक्स स्क्वायर हमारे पास है 78400 डिवाइडेड बाय समेशन एफ 50 है, और समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ अभी हम ये मीन फाइंड कर चुके हैं जो कि 39 के इक्वल आ रहा है, उसका स्क्वायर ले लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आती है अंडर रूट 47, इसका अंडर रूट लेंगे तो 6.85 आ जाएगा। अब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमने फाइंड करना है जो कि इक्वल है एस ओवर एक्स बार इंटू 100 के, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा है 6.85 डिवाइडेड बाय एक्स बार 39 है, उसको डिवाइड करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 17.56%। स्टूडेंट्स, दिस इज योर टुडेज होम टास्क। Question number 4.7, 4.9 and 4.27 part A and B. Solve these problems and send in your subject group.